our body to maintain our health. Okay, बच्चों. Okay, so what is balanced diet? Balanced diet includes all the nutrients. Includes all the nutrients, including water, students. Okay, including water. Water is also very essential, including water in correct proportion. In correct proportion to maintain health. Okay. So comments, where I can see comments? Okay. So students, आपको मैंने बता दिया बैलेंस डाइट क्या है. बैलेंस डाइट इज वन which have all the nutrients, okay, which include meaning all the nutrients in such a quantity and proportion that is required for a human being, for a person. Okay, and it is different or you can say it is depend on the age. What is the age of a person? ठीक है. What is the sex of a person? meaning male है, female है. Then profession क्या है? Then physiological condition meaning environment कैसा है? अभी हम लोग हैं, हम लोग की physiological condition presently they are okay. ठीक है. अगर हम हिली एरियाज में जाएंगे, their physiological conditions are different. Okay, so their balanced diet will be different. ठीक है. वहां हिली एरियाज में बैलेंस डाइट डिफरेंट होगी. ओके, रिक्वायरमेंट अलग होगी, बता दिया आपको मैंने. ओके, then why we need balanced diet? We need balanced diet to maintain our health. Okay, for doing our daily function and to fight against diseases. इन सब functions के लिए हमें balanced diet की जरूरत होती है. Because if any deficiency will be there of any nutrient, किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी रहेगी हमारी डाइट में, तो वी आर गोइंग टू सफर फ्रॉम वन और द अदर डिसीज. ओके, सो दिस इज ओवर बच्चों. और बच्चों प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि हर फूड आइटम की कैलोरिक वैल्यू अलग होती है. ठीक है, अभी बटर है, उसकी कैलोरिक वैल्यू अलग होगी. सीरियल्स है, दाल है, घी है, ऑयल है, ठीक है, ब्रेड है, सबकी कैलोरिक वैल्यू अलग अलग होती है. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द व्हाट इज न्यूट्रिशन. ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? तो बच्चों, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस इन विच वी आर eating food. You can say we are taking food or eating food. We are eating food, digesting or assimilating, digesting it, and then utilizing for the body functions. Okay, तो न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम खाना खाते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है. डाइजेस्ट होने के बाद हमारे जो नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस हैं उनके लिए वो एनर्जी के फॉर्म में यूज होता है. ओके, नाउ बच्चों, न्यूट्रिएंट्स क्या है? ओके, न्यूट्रिएंट्स हम किसे कहते हैं? सब लोग जानते हैं, सब लोगों को पता होगा न्यूट्रिएंट्स क्या है. देयर आर वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर देयर इन अवर डाइट, जो कि मेनली डिवाइड किए गए हैं कई तरह में. So nutrients is a chemical complex substance, chemical complex, or you can say complex chemical substance. ठीक है, complex chemical substance है जो कि कहाँ होता है? present in the food item. ठीक है, और हर फूड आइटम में different nutrients present रहते हैं. Okay, so what is nutrients? Nutrients is the complex chemical substance that are present in our diet, required by our body to function properly. Okay, now nutrients are divided into two parts. nutrients को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो. ठीक है स्टूडेंट्स,
macronutrients and micronutrients. So macronutrients क्या है? Macronutrients means the nutrients that are required by our body in bulk. यानी जो ज्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए उसको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाएगा? इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू राइट कार्बन, सॉरी नॉट कार्बन, इट इज कार्बोहाइड्रेट, protein and fat. These are macronutrients, ठीक है, जो कि बल्क में चाहिए, and we get maximum energy from these macronutrients. माइक्रो में क्या होता है? माइक्रो में आएगा आपके मिनरल्स एंड विटामिन्स. Okay students, micro meaning those nutrients which required by our body in a very minimum requirement. ठीक है, बहुत कम जरूरत होती है. They don't provide any energy to our body, but they are very much necessary in our diet to function properly. Okay? क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, ठीक है, मिलकर काम करते हैं. Okay. Now let's discuss about the nutritive and non-nutritive component of our diet. Nutritive component of our diet. Okay. तो बच्चों न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हमारी डाइट के कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, ऑल 5 न्यूट्रिएंट्स यू ऑल नो. कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, देन प्रोटीन, देन फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स. ओके. So बच्चों carbohydrate contains carbon, hydrogen and oxygen. Okay, and maximum energy we get from carbohydrate, and you people all know that 90% energy we get from carbohydrate. Okay, and carbohydrate we get in the form of 3. ठीक है, there are 3 types of carbohydrate, like sugar है, starch है, cellulose है. ठीक है, sugar we get from sweet fruits. ओके, स्टार्च पोटैटो है, राइस है, व्हीट है. देन सेलुलोज फ्रॉम फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल. नाउ प्रोटीन आल्सो कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. प्रोटीन आल्सो कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. दे आल्सो कंटेन नाइट्रोजन, देन सल्फर आल्सो. ओके, एंड the percentage of protein in our diet is 20 to 25%. ठीक है, डाइट का 20 to 25% प्रोटीन की तरफ जाता है. एंड द मेन जॉब ऑफ प्रोटीन इज फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टू रिपेयर द यू कैन से डैमेज टिश्यूज इन द बॉडी. ठीक है बच्चों. एंड द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर मीट, फिश, एग, पल्सेस, मिल्क, चीज. ठीक है, ये सारे सोर्सेज हैं. नाउ फैट. बच्चों फैट की रिक्वायरमेंट हमारी डाइट में बहुत कम होती है. ओके, यू कैन से 10 to 15% फैट की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में. एक्चुअली क्या है, फैट जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देता है, लेकिन फैट टेक्स टू मच टाइम टू डाइजेस्ट. ठीक है, वो डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता. और आप जान सकते हो कि 1 ग्राम अगर आपने फैट लिया है तो 9% यू कैन से एनर्जी हमें देता है. ठीक है, और वहीं अगर कार्बोहाइड्रेट अगर आप ले रहे हैं 1 ग्राम ले रहे हैं तो वो 4 कैलोरी आपको हीट देता है. ठीक है, तो फैट के सोर्सेज आपको पता होंगे. ठीक है, फैट के सोर्सेज आर डिवाइडेड इन वेजिटेबल्स एंड एनिमल सोर्सेज आर देयर. वेजिटेबल सोर्सेज में आमंड है, कैश्यू है, एप्रिकॉट है. देन एनिमल सोर्सेज में मीट इज देयर, मिल्क, बटर, घी, ऑयल. ठीक है, फैट. Now students, minerals. Let's talk about minerals. So there are around 19 types of minerals are there.
and the main minerals that are required by our body are, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। मेन जो है हमें आपको आपने आयरन के बारे में सुना होगा, ठीक है, आयोडीन के बारे में सुना होगा, आयोडीन है, कैल्शियम ऑब्लिक फॉस्फोरस आई एम राइटिंग, ठीक है। These are the main minerals that are required by our body. So iron, you know, it is required by our body for the formation of hemoglobin, for the formation of RBC. ठीक है, अगर हमारे डाइट में आयरन की डेफिशिएंसी होगी, so we will suffer from anemia. And the sources of iron are apple, banana, spinach, ठीक है, tomato. Then iodine. Iodine is also another very important mineral that we must take in our diet. We must include it in our diet because the deficiency of iodine in our diet will occur in the form of goiter, and also the deficiency, if iodine deficiency is there, the person may suffer from the mental retardation. ठीक है, आयोडीन की कमी से मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। एंड द सोर्सेज ऑफ आयोडीन आर स्पेशली सी फूड्स। जो सी फूड्स होते हैं, सॉल्ट है, वो मिनरल के आयोडीन के सोर्सेज होते हैं। देन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, यू नो, सभी को पता है कैल्शियम हमारी बोन हेल्थ, टीथ के लिए बहुत जरूरी होता है, ओके। एंड द सोर्सेज ऑफ कैल्शियम आर milk, egg, fish, pulses. These are the sources of the calcium. Potassium we need for the proper functioning of our muscular system. पोटेशियम की हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मस्कुलर सिस्टम के लिए। मैग्नीशियम अनदर मिनरल विच हेल्प इन द रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी सेल्स, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन आल्सो वी नीड इन वेरी लेस क्वांटिटी। हमारी बॉडी में बहुत कम, मतलब एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, कम क्वांटिटी में चाहिए, बट डेफिनेटली उनका प्रेजेंस हमारे डाइट में होना चाहिए, ओके। क्योंकि उनकी डेफिशिएंसी अगेन हमें कई सारी बीमारियों को दे सकती है। तो जो विटामिन होते हैं वो भी टू टाइप्स में स्टूडेंट्स डिवाइडेड है। फर्स्ट इज वाटर सॉल्यूबल, देन वाटर सॉल्यूबल विटामिन, स्पेशली वाटर सॉल्यूबल में आता है विटामिन बी एंड सी। फैट सॉल्यूबल विटामिन में आते हैं 4 विटामिन, विटामिन ए, डी, के, ई, ओके। अब देख लेते हैं कि इनकी डेफिशिएंसी से एक्चुअली होता क्या है और इनके सोर्सेज क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स, विटामिन ए सभी को पता है कि हमारी साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमें इफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन इज देयर इन आवर डाइट, तो वी मे विल सफर फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस और इवन growth retardation will be there, and the sources will be green vegetables, milk, cheese, eggs, ठीक है। So sources of vitamins are green vegetable, milk, cheese and eggs. Then vitamin B, if deficiency of vitamin B is there, then we may suffer from beriberi or pellagra, and the sources are fish, egg, milk and cheese. Scurvy, scurvy is a problem of our gums, ठीक है। गम्स की, पेनफुल गम्स की प्रॉब्लम है, और ये हमें विटामिन सी मिलता है सिट्रस फ्रूट से। देन बच्चों, विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो हम रिकेट से सफर हो सकते हैं या फिर हमारी ग्रोथ पर असर करेगी अगर विटामिन डी नहीं है, ठीक है। विटामिन डी वी नीड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यू कैन से फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बोन्स, ठीक है। तो इसके सोर्सेज हैं मिल्क, एग, ग्राउंडनट एंड सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी, ओके स्टूडेंट्स। Now vitamin E is also very much important, and in case if deficiency of vitamin E is there in our diet, we may suffer from the problem of reproduction, ठीक है। and उसके sources होते हैं almond and green vegetable, okay। now next vitamin is vitamin K, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है हमारे डाइट में, तो आपको सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। अब सीरियस प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ब्लड क्लॉटिंग। सब लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जानते हैं। ब्लड क्लॉटिंग को हम ब्लड कोएगुलेशन भी बोलते हैं। तो अगर विटामिन के की कमी है तो ब्लड क्लॉट होने में टाइम लगाएगा, ठीक है।
मतलब टाइम लगाने का मतलब ये है कि ब्लीडिंग कंटिन्यूअस होती रहेगी. सो वी मस्ट टेक विटामिन ई इन अवर डाइट. एंड इसके सोर्सेस हैं बच्चों टर्निप, मस्टर्ड, बीट रूट. ओके, ठीक है बच्चों. नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं अब नॉन न्यूट्रिटिव. न्यूट्रिटिव कंपोनेंट आर ओवर 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया. नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट. और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट कौन से होते हैं बताते हैं अभी. नॉन न्यूट्रिटिव components. बच्चों, these are the components which are present in our diet, but they don't give us any, you can say any energy, या फिर you can say they don't have any nutritive value. मीनिंग हमारी डाइट में प्रेजेंट है लेकिन हमें ना तो एनर्जी दे रहे हैं और ना इनकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू है, बट दे आर स्टिल प्रेजेंट इन अवर डाइट. अब वो कौन कौन से हैं? तो ये हैं हमारे स्पाइसेस. स्पाइसेस हमारी डाइट में प्रेजेंट रहते हैं जो कि क्या करते हैं, टेस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्लेवर को इम्प्रूव करते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट है आपका फाइबर. ठीक है, फाइबर्स क्या करता है, बोवेल मूवमेंट. बोवेल मूवमेंट मतलब आप समझ सकते हैं, यानी कि खाना खाने के बाद डाइजेस्ट करने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा जो पेट है, जो स्टमक है, वो भी मूव करता है. तो बोवेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं. एंड आल्सो चेक्स कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन को भी चेक करता है फाइबर्स. ओके, कॉन्स्टिपेशन. ओके स्टूडेंट्स, देन वाटर. वाटर इज अनदर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट. अब वाटर क्या काम करता है, वाटर हेल्प्स इन सर्कुलेशन. ठीक है सर, हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करता है. देन हेल्पिंग एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट. ओके, देन अनदर टाइप ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट इज artificial sweetener which do not have any nutritive value. ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है बट स्टिल प्रेजेंट इन अवर डाइट. देन प्रिजर्वेटिव्स आर देयर. ओके बच्चों, प्रिजर्वेटिव आर आल्सो देयर इन अवर डाइट जिनकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है. ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट हेडिंग वी विल टेक इज ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल. So everybody, we all wants to control our weight, but we don't do anything to control our body weight. Okay, eating for weight control. तो बच्चों, हम मेनली व्हाट वी डू टू कंट्रोल अवर वेट. हम सबसे पहला काम जो वेट कंट्रोल के लिए समझते हैं इज डाइटिंग, which have a harmful effect on our body. Okay, we should avoid dieting. There are many other ways by which we can control our body weight. ठीक है. So what are the healthy ways to control our weight, or you can say steps. I'm going to write on the board the steps which control our body weight but do not harm. तो सबसे पहले क्या करना है, check your calorie content. ठीक है, कैलोरी कंटेंट. ओके, आपको अपना कैलोरी कंटेंट देखना है. ठीक है, कितना कैलोरी कंटेंट चाहिए. देन रिड्यूस ऑयली फूड. ऑयली फूड रिड्यूस करिए. देन फैटी फूड और जंक फूड इवन. ठीक है, जंक फूड, होममेड फूड ही आप प्रीफर करिए. जंक फूड ये सब आपको रिड्यूस करना है. टेक ए ग्लास ऑफ वाटर बिफोर मील. ठीक है, if you will take a glass of water before meal, how you will feel that you have eaten something. ठीक है, आपको इतनी भूख नहीं लगेगी. take glass of water before meal. ठीक है, before meal. Okay, the include
वेजिटेबल्स, ठीक है, इंक्लूड वेजिटेबल्स और यू कैन से वेजीज एंड फ्रूट्स इन योर डाइट. Okay, these are the steps you can do to control your body weight. ठीक है, and then you can include salad also. ठीक है, सैलेड भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. एंड इवन इन केस द फूड इज टू टेस्टी, ओके, लर्न टेलिंग नो. ओके, if you want to eat more but you have to think if you want to control your body weight, तो आपको करना क्या है कि फूड अगर टेस्टी भी है तो से नो टू फूड. ओके, डोंट ओवर ईट. Eating right food at the right time and some exercise will help you reducing the extra weight or shedding the extra fat deposited in your body. Okay, so these are the healthy steps or good steps I have written on the board to control the body weight. Now we will discuss about the dieting. Okay, तो बच्चों डाइटिंग का मतलब क्या है? सभी लोग जानते हैं डाइटिंग मतलब हम लोग समझते हैं स्किप मील, ठीक है, या फिर कट शॉर्ट आवर डाइट. ठीक है, या तो मील बिल्कुल अवॉइड कर दिया, एक टाइम का खाना नहीं खाया, ठीक है, या फिर हमने आधा पेट खाना खाया. दिस इज डाइटिंग. ओके बच्चों, डाइटिंग इफ यू विल कीप योरसेल्फ ऑन नॉन डाइटिंग इट इज हैविंग मतलब बैड इफेक्ट ऑन योर हेल्थ. ओके, डाइटिंग या फिर डाइट प्लान, आप किसी स्लिमिंग सेंटर का अगर डाइट प्लान आप लेते हैं तो वो आपको कॉस्टली भी लगेगा. एक्चुअली कॉस्टली होता ही है क्योंकि वो आपकी नेचुरल डाइट को तो स्टॉप करवा देते हैं. दे स्टार्ट गिविंग देयर ओन प्रोडक्ट्स, ठीक है, और अपना ही डाइट या मील चार्ट दे देते हैं आपको, वो लेना है. ठीक है, ओके, इट विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर बॉडी वेट. बट इफ यू विल स्टॉप दैट, उनका जो डाइट चार्ट है उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है, तो यू विल विद मोर स्पीड यू विल इंक्रीज योर बॉडी वेट. ठीक है, तो हमें बॉडी वेट रिड्यूस करने के लिए हेल्दी स्टेप्स लेने चाहिए, ना कि हमें डाइट छोड़नी है या फिर हम स्लिमिंग सेंटर्स के डाइट चार्ट को फॉलो करें. ओके, तो अब क्या है हार्मफुल इफेक्ट, क्या है डाइट का? ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट डाइट का क्या है, और यू कैन से हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पिटफॉल्स. हार्मफुल इफेक्ट्स एंड पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग. तो बच्चों सबसे पहला तो यही है कि आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को, वो आपको नहीं मिलने वाले. ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे. फिर क्या होगा जब आपकी बॉडी को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे? आप वीकनेस आपकी बॉडी में फील होगा, आपकी बोन डेंसिटी रिड्यूस होगी, आपकी मसल्स जो कि मसल्स टोन, ठीक है, मसल में यानी टोन मतलब आप ये कह सकते हैं जो तनाव होता है वो रिड्यूस हो जाएगा. आपको अलग हेडेक है, स्टोमक है, एक है, वीकनेस है, ये सारे सिम्टम्स आप फील करेंगे. इन ओवरऑल ऑल द बॉडी फंक्शंस, आपके सारे जो बॉडी फंक्शंस होंगे वो लो हो जाएंगे. ठीक है, और जब आप नॉर्मली काम नहीं करेंगे तो आप कुछ काम ही नहीं कर सकते. आपकी डाइट आपने लिया ही नहीं है तो डाइट कोई काम ही नहीं होगा आपका. ठीक है बच्चों, सो अवॉइड डाइटिंग. ठीक है, हेल्दी वे में आप कंट्रोल करिए अपनी डाइट को. क्या अच्छा है खाना, क्या नहीं खाना चाहिए वेट रिड्यूस करने के लिए, वो चीज आप समझिए. ओके बच्चों, नेक्स्ट है फूड इनटॉलरेंस एंड फूड एलर्जी. फूड इंटॉलरेंस एंड फूड एलर्जी. तो स्टूडेंट, फूड एलर्जी मीनिंग द इनएबिलिटी ऑफ डाइजेस्टिंग फूड. ठीक है, खाने को ना पचा पाना. अब खाना वो एनिमल फूड भी हो सकता है, वो वेजिटेबल फूड भी हो सकता है. ठीक है, फूड एलर्जी क्या है? फूड एलर्जी यू कैन से इट इज अनप्लेजेंट और डेंजरस इफेक्ट और रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम. इफ सपोज यू हैव ईटेड एनीथिंग एंड योर हेलो, इम्यून सिस्टम इज इफेक्टिंग. ठीक है, यानी कि जहां पर आपका इम्यून सिस्टम
इफेक्ट हो रहा है वो ज्यादा डेंजरस है आपका, ठीक है। और आपकी जो मतलब इनटॉलरेंस है वो एक्चुअली आपका मेनली कब होता है फूड इनटॉलरेंस, व्हेन यू ईट इन एक्सेस, जब आप ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फूड इनटॉलरेंस किसी पर्टिकुलर चीज से हो रहा है, नो आप जब ज्यादा खाएंगे तब आप इनटॉलरेंस से सफर करेंगे। एंड वेयर इज फूड एलर्जी, even if you will take a little bit of that item which causes allergy to you, it cause injury, सॉरी नॉट इंजुरी, फूड एलर्जी, ठीक है। फूड एलर्जी में क्या है, कोई पर्टिकुलर फूड जिससे कि आपको एलर्जी होती है, अगर आप थोड़ा सा भी लेंगे तो एलर्जी हो जाएगी। एलर्जी का जो रिएक्शन है यानी जो रेस्पॉन्स है, जो इफेक्ट है, वो आपका बहुत डेंजरस, इवन यू कैन से डेथ भी हो सकती है। बाकी आपका लो बीपी होना या चेस्ट पेन होना या ब्रेथलेसनेस होना, ये सिम्टम्स आपके कॉमन हो सकते हैं, वॉमिटिंग होना, ठीक है, हेडेक होना, ये आपके फूड इंटॉलरेंस और फूड एलर्जी के सिम्टम्स ये हो सकते हैं। बट फूड एलर्जी इज मोर डेंजरस, ठीक है बच्चों। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फूड मिथ्स, ठीक है। फूड मिथ्स मीनिंग मिसकंसेप्शन और रॉन्ग ओपिनियन अबाउट फूड। क्या है फूड मिथ्स, यू कैन से रॉन्ग ओपिनियन, गलत फहमी, ठीक है। तो अब हमारी खाने को लेके भाई क्या मिसकंसेप्शन है, हमारे खाने को लेके क्या फूड मिथ्स है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला तो मतलब सबसे पहला नहीं, हम लोग बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर हमने एग डेली खाया तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो ऐसा नहीं होता, ये इज जस्ट ए मिथ ओनली, इट इज अ रॉन्ग कंसेप्शन ओनली। देन कार्बोहाइड्रेट यानी ईटिंग कार्बोहाइड्रेट कॉजेज ओबेसिटी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देन कुकिंग फूड इन माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव में खाना बनाने से सारे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इट इज आल्सो ए मिथ। और माइक्रोवेव में खाना बनाने से आपका फूड जो है रेडिएशन उसको मिल जाता है, तो दिस इज आल्सो ए रॉन्ग कंसेप्शन, ठीक है। देन पैस्चराइजेशन kills all the nutrients present in the milk, again it is wrong. Drinking tea causes dehydration, ये भी मिथ है, ठीक है। फास्टिंग पीरियडिकली, क्या होता है फास्टिंग पीरियडिकली, मींस इट इज रिमूविंग द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। ऐसा नहीं होता है कि हम फास्टिंग कर ले तो सारे हमारे जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट है बॉडी में वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, इट इज ए मिसकंसेप्शन। देन फ्राइड फूड आर ऑलवेज टू फैटी, रॉन्ग मिसकंसेप्शन, ठीक है। और हमें हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, एक्स्ट्रा विटामिन की जरूरत पड़ती है, सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, नो, it is always better that whatever the nutrients required by our body we should include in our diet। हमें एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, हर कोई एक्स्ट्रा नहीं लेता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लेने की हमें जरूरत नहीं है, बट इट विल बी बेटर इफ वी विल इंक्लूड इट इन आवर डाइट, ठीक है बच्चों। तो आपकी ये क्लास यहीं पर ही खत्म होती है। आई होप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, बहुत इजी टॉपिक था, बहुत छोटा सा लेसन है ये आपका, ओके। सो प्लीज टेक केयर, goodbye all of you, today many are present, थैंक यू okay मैम। तो बच्चों, ठीक है, 25, okay, so now onward your classes will be there on Google Meet only and we will get maximum attendance, ठीक है बच्चों, okay bye, take care। बाय। क्या हाल है दोस्तों? आज बढ़िया। ये दूसरी क्लास भी आने वाली है, अभी उसमें भी चलेंगे। क्विज है उसमें? क्या? केमिस्ट्री क्लास में क्विज है। हाँ पता नहीं कहीं वो केमिस्ट्री की, शायद केमिस्ट्री की। हाँ। मेरा प्रथम दिलीप गवास।
जी। जैसा हाँ आवाज निकाल रहा है। हाँ। सबको पता चलना फीस दे दी चाहिए क्या? कि हाँ बोल रहा है। फीस दे दी? हाँ। हाँ, मैं तो लीव कर रहा हूँ यार। मैं तो डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ यार।